So, welcome all of you. We are starting a new sales series today. It is about selling 101. So, we will cover the basics of selling. It's going to be in various parts. So, today is going to be short and sweet part. We will just get started with the basic. So, let's get started. It's about sales. So, the basics of selling. What every successful sales professional needs to know. It is based on a famous book called as Selling 101. तो 101 के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था by Zig Ziglar. The sales process is very deep. The sales process is very, very important. And you can either become a good sales professional or you need to quit sales. You cannot be in between. Okay. तो सेल्स में आधा आधा नहीं चलता है. So just remember that. So if you want to be in sales, you have to be good in sales. If you are not good in sales, you should as well come out of sales and do something else. Okay. So we will talk about that and we will see some agenda here. So what is the most important question? We will start with that. Then quit selling if you can. तो किसी को लगेगा अरे उल्टा है, सेल्स सीखना है और क्विट सेलिंग क्यों बता रहे हैं. So we'll see why it is mentioned like that. You will be treated rudely. Okay, are you in or not, and what's in it for me? तो we will also cover सेल्स से क्या होता है. सेल्स में आप हो अगर, if you want to be a good sales professional, if you are in the sales industry, then what all is open for you, what kind of platform you will get, what kind of perks, benefits, steps you will get, what kind of luxuries you will get. Then most important, skills for selling. Okay, so let's begin. What is the most important question? Okay, the most important question in sales industry is how do you persuade. You can also phrase it like how do you sell. देखो सेल्स वाला कोई होगा और व्हेन वी लिसन टू सेल्स प्रोफेशनल, दिस इज वन की हार्ट बीट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू देम कि आप सेल कैसे करते हो. हाउ विल यू सेल, हाउ डू यू परसुएड, हाउ डू यू use the art of persuasion, how do you convince the customer, how do you sell in the end, how do you close the sale, right? You can, there are many ways to put this question up front, there are many ways to translate this question. So the bottom line is how do you sell. देखो सेल्स प्रोसेस हर चीज की ना, देखो एक प्रोसेस होती है. सेल्स है तो उसकी एक प्रोसेस है. देर आर सम बेसिक्स, देन देर इज सम सिलेबस यू नीड टू गो थ्रू. You need to understand what are the objections, you need to understand the pitch, you need to understand how to behave, you need to understand the product very well, and so on and so forth. तो सेल्स का भी एक सिलेबस है, मार्केटिंग का भी एक सिलेबस होता है, बहुत सारी चीजों का सिलेबस होता है. लेकिन सिलेबस, यू नो, सिलेबस कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट देर इज सम हार्ट बीट इन दैट, देर इज सम कॉन्सेप्ट इन दैट, राइट? तो सेल्स का हार्ट बीट क्या है? सेल्स का हार्ट बीट है सेल करना. अगर आप सेल नहीं कर सकते तो आप सेल्स में काम नहीं कर पा रहे हैं, आप सेल्स में सक्सेसफुल नहीं है. यू आर नॉट बीइंग सक्सेसफुल इन सेल्स इफ यू आर नॉट एबल टू सेल. सिंपल एज दैट, इजंट इट? तो सेल्स में है तो सेल करना है. हाउ डू यू परसुएड द कस्टमर, हाउ डू यू सेल टू द कस्टमर. Okay, now let me read these points here. You don't persuade by telling, you persuade by asking. ये बहुत बड़ा मिथ है. ये कुछ लोगों को उल्टा भी लगेगा. गुड सेल्स का क्वालिटी बोलना नहीं है, गुड सेल्स का क्वालिटी पूछना है. ये समझ लो आज अच्छे से. अगर आप सेल्स इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप सेल्स कर पाना चाहते हैं, सो अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. यू नेवर परसुएड बाय टेलिंग. नो, आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो बकवास है सेल्स पर्सन की, उसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं है. तो अगर आपको बेचना है, लोगों को परसुएड करना है, सो यू हैव टू आस्क देम, यू हैव टू लिसन टू देम, you have to become a better listener, better talker. Yes, obviously communication will come, we will see. The most important skills जो सेल्स के लिए लगती है वो लिस्ट हम देख लेंगे आज, क्योंकि लोग पूछते हैं कि सेल्स के लिए क्या क्या लगता है. एक दो स्किल्स तो आप हमें पता ही है, लेकिन हम पूरी लिस्ट भी देख लेंगे आज. बट अंडरस्टैंड, यू हैव टू बिकम अ बेटर क्वेश्चन आस्कर, यू हैव टू बिकम अ आस्कर ऑफ क्वेश्चंस एंड नॉट एनी क्वेश्चन कि मौसम कैसा है और ये कैसा है. ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद दैट, यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल टॉक, बट यू हैव टू आस्क डीपर क्वेश्चंस. यू हैव टू आस्क द नीड रिलेटेड क्वेश्चन, आस्क गुड क्वेश्चंस, एम्फेसिस ऑन लिसनिंग फॉर द आंसर. कि देखो सेकंड पार्ट क्यों जरूरी लिखा है यहाँ पर. सिर्फ इतना ही कह सकते थे ना, आस्क गुड क्वेश्चंस, बस खत्म. ये आगे की लाइन क्या बता रही है? विद एम्फेसिस ऑन लिसनिंग फॉर द आंसर. तो सिर्फ पूछने के लिए नहीं पूछना है, पूछ के सोचना नहीं है कि मैं आगे क्या बोलूं, आगे क्या बोलूं. पूछ के सुनना है, उनके आंसर सुनने हैं, तभी तो आपको नीड पता चलेगी ना. ओके, लेट्स स्टार्ट. अभी क्विट सेलिंग इफ यू कैन. द आइडिया इज पीपल से कि हाँ मार्केटिंग मिल जाएगा वो भी कर लेंगे, सेल्स मिल जाएगा वो भी कर लेंगे, ये मिल जाएगा वो भी कर लेंगे. तो ये देखो थॉट अच्छी है, लेकिन सेल्स के साथ ये नहीं चलता. सेल्स के साथ आप हाफ हार्टेड नहीं हो सकते. क्विट सेलिंग वाइल यू कैन, इफ यू कैन. क्यों? अब पढ़ते हैं पॉइंट्स.
Pay attention to the last three words as they are the most important. What is the most important words here? If you can. Okay? If you can मतलब अगर आप छोड़ सकते हो सेल्स को तो छोड़ ही दो. क्यों? क्योंकि आधा अधूरा ही है आपका. सेल्स से जो प्यार है आपका, सेल्स डिपार्टमेंट में, सेल्स इंडस्ट्री में आपको ग्रो करने का जो पैशन है ना, वो आधा अधूरा ही है अगर छोड़ने की चाहत है, अगर छोड़ने की थोड़ी भी डिजायर है. लेट मी रीड दिस पॉइंट्स. दोज हु गेट इनटू सेल्स फॉर मनी और अदर बेनिफिट्स आर शॉर्ट टर्मर्स. तो लोग शॉर्ट टर्म समझते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ. मैं बताता हूँ शॉर्ट टर्म क्या होता है. छोटी सी खुशी देखते हैं. तो सेल्स में भी कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए घुसते हैं. शॉर्ट टर्मर्स. किसी ने बता दिया अरे सेल्स में बहुत पैसा है, बहुत कमीशन मिलता है, ये है वो है, तो लोग सेल्स में आ जाते हैं, राइट. लेकिन एक महीने में भाग जाते हैं क्योंकि सेल्स इज नॉट अबाउट मनी. सेल्स इज अबाउट योर पैशन. सेल्स इज अबाउट द आर्ट ऑफ परसुएशन, नॉट ओनली द आर्ट ऑफ टॉकिंग बट द आर्ट ऑफ लिसनिंग. Okay, you need to get into selling because your head and heart will not allow you to do anything else. ये कस लो, ये आपका मंत्रा, ये कसने की आपकी वो है फॉर्मूला. इस पे कसो. इफ यू आर इनटू सेल्स, आपका जो सेल्स का जो पैशन है ना, उसको इस लाइन पे अप्लाई करके देखो कि मेरा हेड और हार्ट पूरा सेल्स से प्यार करता है. आई एम रियली पैशनेट इनटू सेल्स एंड इट डजंट अलाउ मी टू गेट इनटू एनीथिंग एल्स. So those people have a real fire of passion that lasts long term. Okay, now another important myth of sales industry जो लोगों को लगता है, जिसको लोग झेल नहीं पाते हैं. अब देखो एट्रिशन कैसे होता है. सेल्स में से लोग भाग कैसे जाते हैं, शॉर्ट टर्मर्स कैसे निकल जाते हैं, शॉर्ट टर्मर्स को फायर में कैसे बिठाया जाता है, टेस्ट कैसे होता है सेल्स में, पता है. तो एक ही रीजन है लोगों को सेल्स छोड़ देने का. यू आर ट्रीटेड रूडली. ओके, यू विल बी ट्रीटेड रूडली इवेंचुअली. ओके, तो क्या करना है, पर्सनली नहीं लेना है. लोग आपको नहीं चीख रहे हैं, लोग आपको नहीं गालियां दे रहे हैं, लोग आप पे नाराज नहीं हो रहे हैं, लोग प्रोडक्ट पे नाराज हो रहे हैं, लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं. तो सेल्स प्रोफेशन में लोग इसी तरह से नाराज लोग बहुत सारे बैठे रहते हैं, है ना. पहले ही लोग सेल्स से चिढ़े रहते हैं, आपको पता है. और फिर बहुत सारे धोखा देने वाले, चूना लगाने वाले लोग भी हैं सेल्स इंडस्ट्री में, आपको ये भी पता है, राइट. तो ट्रस्ट वर्दी नहीं समझते जल्दी से लोग इमीडिएटली. जब आप सेल्स कॉलिंग करते हैं, जब आप टेली कॉलिंग करते हैं, जब आप कोल्ड कॉलिंग करते हैं ना, तो ऐसा मत समझना कि आप कॉल करोगे और वो आपको इमीडिएटली आपकी बात सारी सुनेगा. कस्टमर प्यार से सब सुनेगा, सारे बेनिफिट सुन लेगा और प्रोडक्ट खरीद ही लेगा. ऐसा नहीं होता सेल्स में, आपको पता है. जो लोग सेल करते हैं उनको पता है. सेल्स, द डे फॉर सेल्स पीपल इज वेरी हार्ड. एवरी डे इज रिस्क. एवरी डे you need courage to go out into the field or even on the call. The idea is you have to accept this hard fact of sales industry. So when you are calling, you will be treated rudely, but don't take it personally because they are just showing, they are venting their anger out. It doesn't relate to you at all. Even if they are shouting at the product or the quality, they are abusing the company, not you. ये रोज होगा ऐसा नहीं है, बट पीपल विल स्लैम डोर्स ऑन यू. दे विल इवन अब्यूज यू ऑन ओकेजन, बट वो आपके लिए नहीं है. दे विल हैंग अप ऑन यू फॉर नो ऑब्वियस. ये कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स के साथ है. सम विल अवॉइड यू एट सोशल गैदरिंग्स. लोग आपको देख के साइड से निकल जाएंगे, आपको बैन कर देंगे, आपकी कॉल्स नहीं उठाएंगे. ये सब भी होता है. तो रूड का एक ही डेफिनेशन नहीं है कि लोग फोन कट कर देंगे. रूड का डेफिनेशन है गाली भी दे सकते हैं, रूड का डेफिनेशन है आपको बैन भी कर सकते हैं, आपके लिए कंप्लेन भी कर सकते हैं, और डोर भी आपके मुंह पे बंद करते हैं. डोर टू डोर सेल्समैन को हम लोगों ने भी डोर बंद किए हैं, हमें पता है. यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट. ओके, यू हैव टू मेक पैक्ट, यू हैव टू मेक पीस विद दिस फैक्ट. क्योंकि यही एक रीजन है जो सेल्स से लोगों को मैक्सिमम रीजन एट्रिशन यही है. लोग शॉर्ट टर्मर्स आ जाते हैं, सेल्स ट्राई करते हैं, एक भी कस्टमर का रूड कॉल आ गया या कोई कस्टमर नाराज वाला मिल गया, कोई तेज कस्टमर मिल गया, बहुत बात करने वाला, एक्टिव वाला, तो लोग घबरा जाते हैं और सारी की सारी वो गुस्सा, डिप्रेशन पर्सनली ले लेते हैं. एंड देन दे कम एंड टेल मी अरे हमसे नहीं होगा सर सेल्स, राइट. तो ऐसा मत करो, इसको फैक्ट को एक्सेप्ट. अब देखो ये आगे की कोट हम एक अच्छी सी पढ़ते हैं. देयर आर सम कोट्स इन अवर सेशन. डॉक्टर चार्ल्स जार्विस क्या बता रहे हैं? जस्ट बिकॉज यू आर पैरानॉइड डजंट मीन दे आर नॉट आउट टू गेट यू. ओके, तो लोग आपके पीछे ही, आपको ही पीटना चाहते हैं, आपके ही पीछे पड़े हुए हैं सारी दुनिया. ऐसा नहीं है. हम पैरानॉइड हो जाते हैं, लोगों की बातें सुन सुन के हम हेल्यूसिनेट करने लगते हैं कि मैं ना, मुझे सब चोर जैसे ही दिख रहे हैं, मुझे ही सब पकड़ने के लिए आते हैं, मुझे ही सब गाली देते हैं, मेरा ही कोई कॉल नहीं उठाता. तो ये क्या है? ये हमारे मेंटल ब्लॉक्स हैं. आर यू इन और आर यू आउट? द नेक्स्ट स्लाइड. यू कैनॉट गेट आउट ऑफ समथिंग यू हैव नेवर बीन इन. तो ये क्विट सेलिंग का ही पोस्टस्क्रिप्ट है ये स्लाइड, राइट.
आर यू इन अब पूछा जा रहा है, राइट? बिकॉज इफ यू आर इन देन यू विल एब्जॉर्ब दीज टेक्टिक्स, स्टेप्स, प्रोसेसेस, आइडियाज टुडे एंड इन कमिंग सेशंस वेरी वेल. तो ये आपको डिसाइड करना है आज कि मेरा ये पैशन है या नहीं है, या मैं इसमें पूरी जी जान से ट्राई करना चाहती हूँ. तो हम ये समझ पाएंगे, सीख पाएंगे. आर यू इन और आर यू आउट? यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ समथिंग यू हैव नेवर बीन इन. तो देखो, मैं सेल्स से निकल जाऊं तो निकलोगे तो तब जब अंदर आए थे कभी, राइट? तो जिस चीज में गए नहीं वहां से बाहर कैसे आओगे? Lack of commitment is a primary reason the sales profession has earned the reputation of a high turnover. ये भी समझ लो आज बहुत अच्छे से. सेल्स इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाई टर्नओवर है, हाई एट्रिशन है, मैंने समझा है. तो एक पॉइंट तो हमने समझा कि लोग रूडली ट्रीट करते हैं, और रूडनेस को काफी लोग थिक स्किन नहीं होते, झेल नहीं पाते, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया है और पर्सनली लेते हैं उनको सीरियसली. उनको पता नहीं है कि ट्रिक क्या है. ट्रिक ये है कि बंदा अपना ही गुस्सा फेंक रहा है, आपके ऊपर नहीं फेंक रहा है, वो किसी के ऊपर भी फेंकेगा. वो उड़ा ही रहा है कीचड़, जो भी सामने आएगा उस पर गिरेगी, राइट? इट डजंट मैटर दे आर टॉकिंग अबाउट इट. व्हाट इज द अदर रीजन ऑफ अ हाई टर्नओवर? देयर इज अ लैक ऑफ कमिटमेंट. आधे कमिटमेंट से आप इसमें लंबी नैया आपकी पार नहीं लगेगी सेल्स. सो यू हैव टू बी कमिटेड फुली. अगर कमिटमेंट आधा आधा है ना, तो टर्नओवर हो ही जाएगा, आप निकल ही जाओगे कभी ना कभी इसमें से, छोड़ ही दोगे सेल्स. अब हम बेसिक थोड़ा देख लिए. अब हमने जो डरावनी बातें थी वो पहले समझ ली. अब हम इंटरेस्टिंग चीजों की तरफ धीरे धीरे चलते हैं. व्हाट्स इन इट फॉर मी? ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है, या मन में तो पूछते ही हो कि मेरा इसमें क्या फायदा है, मैं क्यों टाइम खराब करूं? व्हाट्स इन इट फॉर मी? सो यू शुड नो दैट. ओके, अब देखते हैं कि सेल्स से आपको मिलता क्या है. ओके, बेसिक्स हो गए. अब हम कुछ क्वालिटीज देख रहे हैं, कुछ पर्क्स देख रहे हैं सेल्स इंडस्ट्री के. तो देखो, ये समझते हैं व्हाई, व्हाट आर द थिंग्स. अगर आप ये पैशन से उतर गए सेल्स में, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यस, ये मुझे सीखना ही है, ये टॉप प्रोफेशन है, ये क्रीम प्रोफेशन है, ये नंबर वन प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड है, विच इज ट्रू, तो क्या क्या मुझे मिलने वाला है, क्या होगा सेल्स सीख के, क्या होगा, अच्छे सेल्समैन बन जाओगे तो क्या होगा. तो देखो, समझते हैं. इंडिपेंडेंस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल गेट. व्हाट इज इंडिपेंडेंस? आजादी. क्यों आजादी होती है? सेल्स वालों को सारे बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट. वन ऑफ द मेनी ग्रेट बेनिफिट्स अबाउट सेल्स इज दैट यू आर ट्रूली योर ओन बॉस. देखो, बॉस तो होता है, मैनेजर तो होता है, रिपोर्टिंग मैनेजर तो होगा आपका, लेकिन कोई ना कोई लीड होगा आपका. लेकिन एक्चुअली में सेल्स इंडस्ट्री में आप खुद के बॉस हो, क्योंकि इफ यू आर नॉट डूइंग कन्वर्जन्स, अगेन लैक ऑफ कमिटमेंट प्रॉब्लम, अगेन यू विल बी फायर्ड, राइट? इवेंचुअली यू विल बी मेड टू क्विट सेल्स. अगर आप कन्वर्ट नहीं करते हैं, सेल्स में सेल नहीं कर पा रहे, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने समझा, हाउ डू यू परसुएट, हाउ डू यू सेल, ये चीज अगर आपके सेल्स करियर में मिसिंग है, तो आप सक्सीड नहीं कर रहे हो, राइट? उसलिए हम ये तरफ बढ़ रहे हैं. लेकिन इंडिपेंडेंस कब आएगा? जब आप सेल करना सीख जाओगे. जब आप सेल करना सीख जाओगे, देन यू विल एक्चुअली बिकम योर ओन बॉस. तब आपको डिसाइड करना है, मैं मेरा दिन कैसे शुरू करूंगी, कस्टमर कब कॉल उठाता है, अब मेरे कॉल्स कौन से हैं, कौन से अपॉइंटमेंट्स कल के लिए हैं, कौन से अपॉइंटमेंट्स फ्राइडे को कॉल करना चाहिए, किसको फ्राइडे को लंच पे लेके जाना है, किसको ड्रिंक्स पे लेके जाना है, किसको वेडनेसडे को कॉल करना है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर. ये सारा अपॉइंटमेंट, ये सारा हिसाब किताब आप बनाते हैं. सो यू विल मेक योर ओन चार्टर, you will make your own roster, you will even decide your own salary because of the commission, because of the perks and benefits that are available in the sales industry. Okay, you are in business, as the saying goes, for yourself but not by yourself. ये समझो, आप बिजनेस में हैं, सेल्स में हैं, तो खुद के लिए कमा रहे हैं. एक्चुअली ऐसा है ना? कंपनी को आप चार चांद लगा रहे हैं तो कंपनी आपको चार चांद लगा रहे हैं. लेट्स सी अदर क्वालिटीज. अपॉर्चुनिटीज, ये दूसरा पर्क है सेल्स इंडस्ट्री का, कि बहुत सारे ना अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं. अपॉर्चुनिटीज बॉर्न आउट ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना? आजादी से ही पैदा होती है. तो अलग अलग अपॉर्चुनिटी कहां से आती है? आप फ्रीडम में है, आप एक अपॉर्चुनिटी अच्छे से निभा रहे हैं, आपने एक मार्केट कवर कर लिया, आपको दूसरा मार्केट दिया जाता है, आप वो मार्केट भी टेक ओवर कर लेते हैं, फिर आपको तीसरा मार्केट दिया जाता है. सो अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस फॉर सेल्स पीपल. For sales industry, opportunities are endless. They are allowed to travel, they are allowed to claim their bills, they are allowed to be given perks and benefits as long as they are selling. You get ample of opportunities in sales industry. There is no shortage of opportunities. Problem solving. अब ये देखो, किसी को लगेगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या सिर्फ इंजीनियर्स नहीं करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग इंजीनियर्स के साथ ज्यादा करके जोड़ा गया है, राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम्स योर टूल इन योर फोर्टे इफ यू आर इनटू सेल्स. कैसे होता है ये समझते हैं. क्योंकि देखो, सेल्स पर्सन कर क्या रहा है एक्चुअली? कस्टमर से बात कर रहा है और कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, राइट? कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले बंदे को ही सेल्स प्रोफेशनल हम बोलते हैं. सो सेल्स पीपल आर एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्वर्स फॉर
कस्टमर्स फॉर पीपल। तो जो जिसकी फोटे है उसको दो। इसी तरह से सेल्स पर्सन डज परसुएजन फॉर अ लिविंग। सेल्स पर्सन लोगों से ही बात करता है दिन रात, लोगों को ही कन्विंस करता है। तो पीपल से बात करनी है तो सेल्स पर्सन से अच्छा कोई पर्सन ही नहीं है, बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल परसुएडर। तो ये क्वालिटीज भी समझ रहे हैं, चैलेंजेस भी समझे हमने पहले, अब हम सेल्स के पर्क्स भी समझ रहे हैं। देयर इज नथिंग ऑन अर्थ दैट ब्रिंग्स एज मच सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस एज बीइंग एबल टू सॉल्व समवन एल्सेस प्रॉब्लम। देखो दुनिया में इससे ज्यादा हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन किसी चीज से नहीं मिलता। किससे मिलता है? दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से। जब आप किसी को मदद कर पाते हैं, देखो सेल्स पर्सन, जो अच्छे सेल्स पीपल होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सुनते हैं और कस्टमर्स की लाइफ में एम्पैथाइज करके उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के सॉल्यूशंस देते हैं। यू आर डेडिकेटेड टू सॉल्व समवन्स प्रॉब्लम्स, दिस गिव्स यू इमेंस सेटिस्फैक्शन। तो ये सेल्स इंडस्ट्री का पर्क है। ये सेल्स इंडस्ट्री के चैलेंजेस तो समझ लिए, लेकिन अब पर्क्स भी समझ लो, सो दैट इट इंस्पायर्स यू, इट मेक्स यू हैप्पी एट द बॉटम ऑफ the time. At the end of the day you are happy because you have solved someone's problem. For whatever services you are offering, you are actually adding benefits to their life, so you are actually problem solving, you are problem solving for them. Fourth perk of sales industry is security. सिक्योरिटी मिलती है, देखो फ्रीडम मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलेगी? सेल्स में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है, सबसे ज्यादा जॉब सिक्योरिटी सेल्स में है। व्हेन यू आर सेलिंग, आपको नहीं निकाला जाएगा किसी भी कंपनी से, not us, not anywhere. If you are selling, nobody will fire you. In sales, you don't have to wait for things to happen. You make things happen. यही सिक्योरिटी है जीवन की। आप डिपेंडेंट नहीं है, आप इंडिपेंडेंट है। हमने समझा? सेल्स में आप खुद चीजें बना रहे हैं, अपना चार्टर, अपना रोड खुद खोद रहे हैं, अपना रोड खुद पेव कर रहे हैं। रॉयल रोड टू सक्सेस। वाई? बिकॉज यू आर मेकिंग थिंग्स हैपन, बिकॉज यू आर अप्रोचिंग कस्टमर्स ऑन योर ओन, यू आर हेल्पिंग द कंपनी डेवलप बिजनेस, राइट? आपको कोई बोल नहीं रहा है, चूंकि आप सेल्स में, चूंकि आप सेल्स की नब्ज को समझते हैं, यू अंडरस्टैंड द हार्ट बीट एंड यू आर कमिटेड टू इट head and heart. But sales people have to be proactive. When business is slow, you go out and stir the market and get it into action. देखो मंदी भी जो होती है, इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, मार्केट के चेंजेस होते हैं, है ना? मार्केट प्लेस में चीज़ें बदलते रहते हैं, भाव बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, ऑयल का भाव बढ़ जाता है, फिर उससे सब चीज़ें बढ़ जाती है, फिर कम हो जाता है, फिर स्टॉक मार्केट बबल बस्ट होता है, फिर सारी चीज़ें गिर जाती हैं, तो बिजनेस ऊपर नीचे चलता रहता है। तो बिजनेस जब स्लो होता है ना, तो सेल्स लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहीं भी जाके सेल कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, दे आर क्लोज टू द मार्केट। तो मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज वो लोग ढूंढ लेते हैं, मार्केट में जाकर वो स्टेयर करते हैं, वो एक्शन क्रिएट करते हैं खुद, क्योंकि बिजनेस लो है, वो खुद बाहर जाते हैं, खुद लोगों से बात करते हैं, खुद नई नई अपॉर्चुनिटीज, खुद नए नए प्रोडक्ट्स, खुद नए नए सर्विसेज सेल करते हैं। सो दे हैव, दैट इज अ सिक्योर फीलिंग एंड दैट सिक्योर्स देयर जॉब। ओके, फैमिली। अब ये फैमिली क्या है? तो ये भी समझते हैं। बी ऑनेस्ट विद योर फैमिली, दे वांट टू फील एंड बी पार्ट ऑफ योर ट्रायल्स एंड ट्रम्स। तो कोई सेल्स में है तो अपनी फैमिली को झूठ बोलेगा, तो ऐसा मत करो। इफ यू आर इन सेल्स, यू आर इन सेल्स, योर फैमिली नीड्स टू बी देयर टू सपोर्ट यू। देखो फैमिली तो हर एक चीज में हमें सपोर्ट करती है, तो फैमिली को साथ में लेकर चलना है, ये बताया जा रहा है इसमें कि आप सेल्स में हैं तो आप फैमिली से कट ऑफ मत रहो, बिकॉज फैमिली इज द वन हु विल सपोर्ट यू व्हेन यू आर टेकिंग राइट कॉल्स। फैमिली इज द वन when you face an obstacle or a trial, family is the one to guide. They are a source of encouragement and in this process our own growth will be enhanced. तो जब फैमिली से भी सपोर्ट मिलता है, फैमिली वाले कहते हैं यस वी आर टुगेदर विद यू, whether you are the man of the family or whether you are the earning person of the family or whether you are the woman of the family, whether you are a housewife, आप जो भी कर रहे हैं फैमिली के लिए, फैमिली का सपोर्ट है उसमें। एंड मूविंग अप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्क ऑफ सेल्स इंडस्ट्री इज फास्ट प्रमोशंस, फास्ट ग्रोथ। ओके, जल्दी से आप ऊपर पहुंचते हैं, क्यों? इफ यू आर सेलिंग, सेल्स पीपल कंसिस्टेंटली मूव इनटू एग्जीक्यूटिव स्वीट्स बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीजिंग डेप्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ स्किल्स दे मस्ट एक्वायर। सेल्स पीपल जनरली सीईओज बन जाते हैं टॉप लेवल। तो सेल्स नहीं है तो देयर इज नो ब्रेड एंड बटर फॉर एनीवन इन द कंपनी। और सेल्स वाले ये सारी क्वालिटीज समझते हैं, रखते हैं, परसुएजन, कम्युनिकेशन, जिस पे अभी हम जाते हैं इन अ फ्यू स्लाइड्स। बट बिकॉज ऑफ दिस डेप्थ एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ स्किल्स they have already, they are good with all these qualities. Which are those qualities? Let's read some of them here. Creative problem solving, persuasion, communication, presentation, people skills, commitment, discipline, courage, understanding the product, listening well, and so on.
तो ये जो सारी स्किल्स है, ये सारी सी सूट के लिए भी लगती है वाले, ये स्किल्स हर जगह काम में आएंगी। परसुएशन आता है तो आप कभी भी लोगों को सेल कर सकते हैं, कभी भी लोगों को अपना पॉइंट रख सकते हैं। कम्युनिकेशन आता है तो आप बात कर सकते हैं क्लियरली। प्रेजेंटेशन आता है तो आपके आइडियाज डब्बे में बंद नहीं रह जाते, आप उनको रिलीज कर पाते हैं, सेल कर पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है तो आप लोगों को मदद करते हैं तो पैसा मिलता है। पीपल स्किल्स आते हैं तो सारी दुनिया आपके लिए खड़ी रहेगी हमेशा। कमिटमेंट है तो आप ऑनेस्ट हैं, आपको साथ मिलता रहेगा। डिसिप्लिन है तो आपका काम टाइम पे होता है, प्रोडक्टिविटी है, स्पीड है। करेज है तो आप सेल सीख पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर सेलिंग, नंबर 1 पे ऑनेस्टी आता है। नंबर 1 इज ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड एथिक्स। ये नहीं है तो आप सेल्स में कभी ना कभी आप गिर जाएंगे वहां से, क्योंकि आप धोखा देने के लिए अगर सेल्स में आए हैं देन इट विल नॉट वर्क एट ऑल। ठीक है, तो सेल्स पीपल मेकिंग अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। बट अंडरस्टैंड सेल्स के साथ क्या कनेक्शन है इसका। सेल्स के साथ ये कनेक्शन है कि आप ऑनेस्ट नहीं है तो आप पे कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा। और कस्टमर तो पूरा ट्रस्ट का ही बिजनेस है, कस्टमर तो पूरा कन्विंसिंग का ही बिजनेस है। कन्विंसिंग कम्स फ्रॉम ट्रस्ट। अगर आप ऑनेस्ट नहीं है, नोबडी विल लिसन टू यू, पीपल विल कैच यू at your lies red-handed. Okay. Being ethical is not only the right way, it is the most practical, easy way to live. So don't leave your ethics for anything. Okay, be ethical, be honest, especially in sales. True selling professionals don't talk about ethics, they live ethically. ट्रस्ट, नंबर 2 क्वालिटी। ये कोई बता नहीं पाता वैसे, है ना, इंटरव्यूज में ये आंसर कोई नहीं देता मुझे। ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट आर टॉप 2 क्वालिटीज इन सेल्स, बट दे आर। सो इफ यू आर नॉट ट्रस्टेड सेलर, nobody will buy from you. Trust is another foundation of sales. Okay, remember this. The primary reason people will choose not to buy from you is the lack of trust. ये सेल्स वालों को पता है, जिनको नहीं पता है उनको भी पता है। मोस्ट प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, लोग बहाने कुछ भी देते हैं आपको, लेकिन रीजन एक ही होता है, या कुछ ही रीजन होते हैं। एक रीजन ट्रस्ट का होता है, उसमें से बड़ा रीजन ट्रस्ट का है। लोग आपसे बाय नहीं कर रहे हैं आपकी पूरी स्पीच के बाद भी, आपके 50 अपॉइंटमेंट के बाद भी, आपकी बातें सुनकर भी। तो देखो उसमें बहुत सारी बारीक चीजें हो सकती हैं। आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपकी पिच अच्छी नहीं है, आपका कॉम्पिटिटर ज्यादा अच्छा है, उनकी सर्विस ज्यादा अच्छी है, ये सब हो सकता है। लेकिन बॉटम लाइन में क्या है, कस्टमर को आपकी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है। वन थिंग्स कस्टमर हैव ऑलवेज रेटेड हाईएस्ट इन द सेल्स वर्ल्ड इज ट्रस्ट। नंबर 1 पे ट्रस्ट आता है। ओके, नंबर 1 पे ऑनेस्टी देखा, नंबर 2 पे हमने ट्रस्ट देखा। लिसनिंग इज द थर्ड क्वालिटी। ऑल सेल्स प्रोफेशनल्स यूटिलाइज लिसनिंग स्किल्स टू देयर फुलेस्ट। क्योंकि जब आप लिसन करते हो तो आप पार्टी के एक्चुअली हीरो बन जाते हो, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो लिसनर्स चाहती है, टॉकर्स नहीं चाहते। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। लिसनिंग स्किल पे हमने बात की है पहले भी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सीरीज में भी बात की है। लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, तो ये डेवलप करना होगा आपको। ट्रस्ट फैक्टर गोज अप व्हेन प्रोस्पेक्ट्स सी दैट सेल्स पीपल इंटेंसिवली लिसन टू देयर नीड्स एंड डिजायर्स। ट्रस्ट का जो मार्कर है ना, डिंग 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 डिंग, वो बढ़ता जाता है ऊपर। कस्टमर का और आपका एक ट्रस्ट इंडिकेटर हो लगेगा। जैसे जैसे कस्टमर को आप सुनते जा रहे हैं अच्छे से, तो आप देखेंगे वो आप में इंटरेस्ट लेता जा रहा है, वो कंपनी में इंटरेस्ट लेता जा रहा है, वो और सुनने को इच्छुक है, वो आपको फिर बताने, फिर वो आपकी बात भी सुनेगा लास्ट में। लेकिन आपने ट्रस्ट फैक्टर को गेन कर लिया। व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग और प्रिपेयरिंग टू टॉक, वी कैन लिसन फुली। तो या तो हम बोलते हैं इन जनरल, या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं, ये खत्म करेगा ना अब मैं ये बोलूंगा, ये इसको बोलने दो, बोल। जैसे ही खत्म करेगा आप टूट पड़े, अरे चलो फिर ये करते हैं, अरे चलो फिर वो करते हैं। आप तैयारी ही कर रहे हैं ना, मन में सोच ही रहे हैं। तो ये हमारे माइंड में दो ही एक्टिविटी चल रही होती है, या तो हम बोल रहे होते हैं या बोलने के बारे में सोच रहे होते हैं। माइंड का चैटर चल ही रहा है। तो ये दोनों को ब्रेक करना है, ये हैबिट को तोड़ना है। ये पुरानी हैबिट है। टॉकिंग इज शेयरिंग बट लिसनिंग इज एक्चुअली केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग, हमने समझा है ना। टॉकिंग इज केयरिंग, टॉकिंग इज शेयरिंग। आप अपनी नॉलेज, अपने प्रॉब्लम दूसरों को बता रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं सिर्फ। प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, बट लिसनिंग इज एक्चुअली केयरिंग। जो सुन रहा है वो केयर लेता है आपकी, वो आपसे प्यार करता है, केयर लेता है, तभी सुन रहा है। ओके, कम्युनिकेशन। अब देखो 4 पे फाइनली द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन केम इन द लिस्ट ऑफ सेल्स इंपॉर्टेंट क्वालिटीज। तो कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए, यू शुड बी एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। तो जिसको बात करना नहीं आता, बोलना ही नहीं आता, आप सुन, तो फिर वो तो सेल्स के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने वर्ड्स तक सीमित नहीं है, बॉडी लैंग्वेज में भी है, इंटेंशंस में भी है। आपकी अफर्मेशंस, आपकी विजुअलाइजेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सभी चीज़ें बोलती है। आपकी टोन, आपकी पिच, आपकी वॉइस इन्फ्लेक्शंस, आपका कॉन्फिडेंस, वेदर यू आर स्माइलिंग और वेदर यू आर सैड ऑन द फोन और इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, दे कैच यू देयर। Be calm and cool even if the customer uses crude, rude, profane language and loses his calm. ये हमने पहले समझ लिया, you will be treated
एब्सोल्युटली। तो कम्युनिकेशन का काम छोड़ना नहीं है आपको। एंड अनदर क्वालिटी इज डिपेंडेबिलिटी, यानी कि क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब रेपुटेशन भी होता है। क्रेडिबिलिटी का मतलब योर रेपुटेशन प्रीसीड्स यू। तो क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है आपकी रेपुटेशन आपसे पहले पहुंचती है, लोग बताते हैं। क्रेडिबिलिटी कैसे बनती है ये समझो। बी क्रेडिबल एंड डिपेंडेबल। क्रेडिबल मतलब जिनके ऊपर लोग डिपेंड करते हैं एक्चुअली। योर इंटीग्रिटी, बिलीव्स, कॉन्फिडेंस एंड प्रिपरेशन गिव्स यू क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी के लिए ये इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और डे वन में तैयार नहीं होगी। इंटीग्रिटी तो हमने नंबर 1 पे पढ़ा था, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। बिलीफ्स यानी आपके कॉन्फिडेंस, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, प्रोडक्ट नॉलेज, ये सब आता है। कॉन्फिडेंस मींस योर कम्युनिकेशन, योर प्रेजेंटेशन, योर वे ऑफ स्पीकिंग एंड प्रिपरेशन। आपने तैयारी की है, आप ऐसे ही नहीं पिच पे आ गए हैं। यू हैव डन योर practice, you have read your books, you have done your homework, you have talked to the people enough times. Preparation will only make you a real successful person. Okay, and there is a beautiful quote for you. Understand this very well. You can have everything in life you want if you will just help enough people, other people get what they want. आप जो पाना चाहते हैं ना, वो आप दूसरों को पाने में मदद करो। आप सब कुछ पा सकते हैं जीवन में, वो बता रहे हैं, अगर आप इनफ अदर लोगों को हेल्प करते हैं उनको जो पाना है वो दिलाने में। और सेल्स पर्सन क्या कर रहा है? सेल्स पर्सन वही कर, ये जिनके लाइफ का मोटो है वो अच्छे सेल्स पर्सन है। विद दिस वी वांट टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच।